Chalo, videos on all of you. Now, this is the last part of final accounts. Okay, final accounts chapter का ही part है. Journal proper, where we deal with opening entries, closing entries, and adjustment entries. Okay. Some of the entries we have already done. Some entries are new. And again, this topic is not compulsory for all the colleges. Only NM, Mithibai, and Podar. They keep this topic. Okay. Journal proper. Other colleges, they mostly leave it an option. But it is very important from your fundamental point of view. Opening entries, closing entries, and adjustment entries. Okay. Let's start with the basics. There are three types of entries we'll be learning here. Opening entry, closing entry, and adjustment entry. Okay. Let's understand one by one what are these. Opening entries, closing entries, and adjustment entries. Okay. Look at the screen now. Videos on all of you. See, one of these we have already learned. Opening entry we have already learned. Do you remember about opening entry? In which chapter we did learned about opening entry? जर्नल जर्नल. जर्नल चैप्टर में हमने एक ओपनिंग एंट्री ऑलरेडी सीखा हुआ है, जहां पे अच्छा, व्हाट वाज द फॉर्मेट एंड व्हेन वी यूज्ड टू पास द ओपनिंग एंट्री, डू यू रिमेंबर? And they introduce something new in the running business. Whenever at the we start have of any running list of assets or liabilities in a running business, रनिंग बिजनेस में अगर अपने को फर्स्ट डेट का लिस्ट ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया हुआ होता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 1 अप्रैल, याद है? एसेट्स की लिस्ट होती है, लाइबिलिटीज की लिस्ट होती है, तो वो लिस्ट के हिसाब से वी पास समथिंग दैट इज कॉल्ड एज एन ओपनिंग एंट्री. एंड क्या ये ओपनिंग एंट्री हर महीने के बिगिनिंग में होती है कि जस्ट वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? the beginning of the year. Just once at the Yeah. beginning of the year. Just once at the beginning of the year, you pass this opening entry. Just once in the beginning of the year. Just once. And what is the format of this opening entry? Suppose मैं आपको list दे दूं, cash, bank, furniture, building, assets on the premises. debit side and Yes, liabilities on the credit side. credit side. So the format of opening entry is somewhat like this. It is assets account debit to liabilities account to capital account. Remember this? So assets account debit to liabilities to capital. Okay, okay. That is your format of opening entry. ओपनिंग एंट्री एक्चुअली होता क्या है? ओपनिंग एंट्री एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है. ओपनिंग एंट्री प्रैक्टिकली कुछ काम का नहीं है. खाली हम लोग क्या करते हैं, ईयर के एंड पे सब एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक्स में बंद कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में उन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटीज को ओपन करके लेके आते हैं वापस बुक्स में. प्रैक्टिकली बिजनेस बंद नहीं होता है. दैट्स लॉजिकल, राइट? एक साल के एंड में do you shut down your store, shop, sell out all the assets, pay off all the liabilities, then again on the new year day again bring in all the assets, again bring in all the liabilities? Do you do that stuff? No. So practically your business is moving as usual. The assets and liabilities are carried forward as usual. Just for theory, एक थियोरेटिकल परंपरा चलती आ रही है, प्रोसेस चलती आ रही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ईयर एंडिंग पे जितने एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं उनको बंद करते हैं. उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री. वो हम लोग लर्न करेंगे अभी. तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को बंद कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में इन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम लोग वापस ओपन करके लेके आते हैं बुक्स. तो आपने जर्नल टॉपिक में ओपनिंग एंट्री लर्न की है. ये ओपनिंग एंट्री आएगी, यहां पर भी आएगी
और इसके साथ क्लोजिंग एंट्री भी लर्न करोगे तो पूरा सर्कल ऑफ 1 ईयर विल बी कंप्लीट. पूरा 1 ईयर का सर्कल ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी विल कंप्लीट विद. तो फिलहाल जस्ट फोकस ऑन इंडिविजुअल पार्ट. बाद में एक बार मैं तीनों एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर तीनों पिक्चर का पूरा क्लैरिटी आ जाएगा आपको. क्या होता है ओपनिंग एंट्री, क्या होता है क्लोजिंग एंट्री, क्या होता है एडजस्टमेंट एंट्री. ओके, पहले ओपनिंग एंट्री ये याद आ गया आपको. ओपनिंग एंट्री कब पास करते हैं हम लोग? व्हेन डू वी पास ओपनिंग एंट्री? ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर और लास्ट डेट ऑफ द ईयर. तो फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर. एंड फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ और जस्ट फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर? When do we pass opening entries? First date of the year. Only first date of the accounting year. अगर accounting year आपका April to March है तो first April. Accounting year January to December है तो first January. Accounting year is from July to June तो first July. Is this clear? First date of the year you pass this entry, that is opening entry. And mind you, opening entry is passed only and only for assets and liabilities. Opening entry is passed only and only for assets and liabilities. Is there any opening entry for expenses and incomes? Never. Can there be an opening entry for expenses and incomes? No. Can't be. It is not possible. Why? Because in final accounts, all those accounts are closed. Absolutely right. Because expenses and incomes, they have a life of just 1 year. एक साल होता है तो expense और income का life खत्म हो जाता है. All expense and all incomes, they get transferred to trading account or profit and loss account at the end of the year. So next year, you don't have any expense or income at the beginning to start with. You don't have any expense account, you don't have any income account at the beginning of the year to start with. You have to start afresh. New expense, new incomes will start after you pay them, after you incur them at the beginning of next year. So expenses and incomes, they cannot be carried forward from one financial year to the other financial year. But that is not the case with assets and liabilities. Assets and liabilities get carried forward through the balance sheet into the next year. तो प्रीवियस ईयर बंद होने के बाद एसेट्स और लायबिलिटीज नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं. बट एक्सपेंस और इनकम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं. उनका लाइफ जस्ट 1 ईयर होता है और 1 ईयर के एंड में ऑल एक्सपेंस एंड ऑल इनकम्स गेट शट डाउन एंड दे गेट ट्रांसफर्ड टू trading and P&L account. So all in all, what you need to remember is opening entry is gonna be for only assets and liabilities. Opening entry is going to be only for assets and liabilities. Is this clear? Now let's move to closing entries. Closing entries मतलब क्या? Closing entry मतलब और कुछ नहीं, जो आप फाइनल अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में, ओके, ये सब पोस्टिंग को ही क्लोजिंग एंट्री बोलते. तो क्लोजिंग एंट्री जो है ये सब आइटम्स का आएगा. मतलब एक्सपेंस एंड इनकम्स का भी आएगा और एसेट्स एंड लायबिलिटी. एक्चुअली एसेट एंड लायबिलिटी का नहीं होना चाहिए, बट अगेन थियोरेटिकल पार्ट, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, थियोरेटिकल पार्ट के लिए एसेट और लायबिलिटी की भी क्लोजिंग एंट्री आएगी. ओके, तो लेट्स फोकस ऑन क्लोजिंग एंट्री नाउ. ओपनिंग एंट्री तो एक ही होता है साल के बिगिनिंग में, फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, ओनली ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. फॉर्मेट इज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. दैट इज ओपनिंग एंट्री. नाउ लेट्स फोकस ऑन क्लोजिंग एंट्री. क्लोजिंग एंट्री सब आइटम्स का होगा. एक्सपेंस इनकम का तो होगा ही, क्योंकि उनका लाइफ 1 ईयर है, 1 ईयर के एंड में वो बंद हो जाते हैं. लायबिलिटीज और एसेट का भी क्लोजिंग एंट्री होगा थियोरेटिकल पर्पस के लिए. व्हाट इज दैट एंड हाउ इट इज टू बी डन, आई विल डिस्कस. पहले लेट्स फोकस ऑन एक्सपेंस एंड इनकम. वी हैव ऑलरेडी लर्न one closing entry while we were doing depreciation chapter 1 or 2 or 3, maybe 3 closing entry when we were doing depreciation chapter.
तभी हमने 3 नॉमिनल अकाउंट्स को बंद करके पीएनएल में डाला हुआ था, आपको याद होगा तो। डेप्रीसिएशन के जर्नल में मैंने बताया था 3 क्लोजिंग एंट्री। कौन से अकाउंट्स को हमने क्लोज करके नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रांसफर किया था? डू यू रिमेम्बर? Depreciation account, loss on Depreciation, sale, and profit profit and on loss. sale. Profit and loss account. Depreciation account, loss on sale and profit on sale. So do you remember what was the closing entry of depreciation when we transferred it to P&L? Profit and loss account debit to depreciation account. It was P&L depreciation. अभी ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने डेप्री चैप्टर भी किया और फाइनल अकाउंट्स भी किया है। तो डेप्रीसिएशन में याद है हम लोग लिखते थे बाय पीएनएल ईयर के एंड में। डेप्री अकाउंट छोटू सा बनता था, उसमें 2 एंट्री आता था, टू मशीनरी बाय पीएनएल, टू मशीनरी बाय पीएनएल, टू मशीनरी बाय पीएनएल। तो जो बाय पीएनएल लिखते थे, याद आ रहा है, उसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री आपका पीएनएल में जाता है। समटाइम्स डेप्रीसिएशन अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, रिमेंबर? डेप्रीसिएशन आपका ट्रायल बैलेंस में जब भी दिखता है, तभी किधर ट्रांसफर करते हो? डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर करते हो। एडजस्टमेंट वाला डेप्री का बात नहीं कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस वाला डेप्रीसिएशन का बात कर रहा हूं। तो जब भी डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में होता है तो सीधा सीधा किधर जाता है? पीएनएल डेबिट में। तो ट्रायल बैलेंस तो क्या है? लिस्ट है। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, वो तो एक लिस्ट है, उसमें क्लोजिंग बैलेंस छाप दिया आपने। बट एंट्री क्या हुई? एंट्री ये हुई कि डेप्री अकाउंट में आया बाय पीएनएल और पीएनएल में आ गया टू डेप्रीसिएशन। दैट इज व्हाट इज द ट्रांसफर एंट्री। डेप्रीसिएशन में बाय पीएनएल, पीएनएल में टू डेप्री, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हुई? तो पीएनएल टू डेप्रीसिएशन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर एंट्री या फिर क्लोजिंग एंट्री। इसी को ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं या इसी को क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। ऐसे ही हर एक एक्सपेंस और हर एक इनकम का ट्रांसफर एंट्री आता है। एवरी एक्सपेंस एंड एवरी इनकम का देयर इज अ ट्रांसफर एंट्री। आपने जर्नल एंट्रीज नहीं किया, आपने डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग किया। डेप्रीसिएशन में बाय पीएनएल और पीएनएल में टू डेप्रीसिएशन, दैट इज लेजर, बोथ आर लेजर अकाउंट्स। बट ये हम लोग लर्न कर रहे हैं इसके पहले का स्टेप, जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्रीज बोला जाता है, इनको क्लोजिंग एंट्री कहा जाता है। कैन यू टेल मी ऑन द सेम लाइंस व्हाट इज द ट्रांसफर एंट्री फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन? P&L to loss on sale of P&L to loss on sale of machine, ये भी हमने सीखा था डेप्री चैप्टर में, because loss on sale of machine was a nominal account, so that would be transferred to P&L. तो loss on sale में by P&L, P&L में loss on sale। एक और ट्रांसफर एंट्री हमने लर्न की थी, अगर आपको याद होगा तो। What was that? profit on sale of machine to Profit P&L. and loss account. Profit on sale of machine to P&L, ये भी हमने सीखा था। ये किसका ट्रांसफर एंट्री था? इनकम का ट्रांसफर एंट्री था। प्रॉफिट ऑन सेल वाज एन इनकम, तो प्रॉफिट ऑन सेल का क्रेडिट बड़ा होगा, डेबिट कम होगा, तो डेबिट में टू पीएनएल और क्रेडिट पीएनएल क्रेडिट में बाय प्रॉफिट ऑन सेल, करस्पॉन्डिंग एंट्री। तो इन्हीं चीज को, यही जो हमने लर्न किया था, इन्हीं को कहा जाता है क्लोजिंग एंट्री या फिर ट्रांसफर एंट्री। क्लोजिंग एंट्री या फिर ट्रांसफर एंट्री। यही लाइंस पे कैन यू थिंक एंड टेल मी व्हाट विल बी द क्लोजिंग एंट्री फॉर सैलरीज? व्हाट विल बी द क्लोजिंग एंट्री फॉर सैलरीज? P&L to salary. P&L to salaries. Can you tell me what will be the closing entry for advertisement? P&L to advertising. P&L to advertisement. Can you tell me what will be the closing entry for carriage outwards? P&L to carriage outward. P&L to carriage outward. आपको कुछ लिंक समझ में आ रही है? ये कैसे हो रहा है? P&L to, P&L to, P&L to, P&L to. Why am I writing P&L to all these expenses? Because all these are what type of expense? Direct or indirect? Indirect expense. So all the indirect expenses are getting transferred to which account? Profit and loss account at the end of the year. और ये रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्या लिख रहे होगे आप? रिस्पेक्टिव अकाउंट मतलब सैलरी अकाउंट में क्या आएगा? बाय पीएनएल। जैसे डेप्री अकाउंट में आता था, याद है, बाय पीएनएल, वैसे सैलरी में आएगा बाय पीएनएल। पीएनएल में टू सैलरी।
लॉस ऑन सेल में आएगा बाय पीएनएल, पीएनएल में 2 लॉस ऑन सेल। एडवर्टाइजमेंट में अकाउंट में आएगा बाय पीएनएल, पीएनएल में 2 एडवर्टाइजमेंट। कैरेज आउटवर्ड में आएगा बाय पीएनएल, पीएनएल में 2 कैरेज आउटवर्ड। तो ये बाय पीएनएल, ये पीएनएल वाली एंट्री आएगी कौन से डेट पे? कैन इट हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ द ईयर और इट विल हैपन ऑन द लास्ट डेट ऑफ द Year end. ईयर एंड पे। ईयर एंड पे एक ही बार जितने नॉमिनल, क्योंकि 12 महीने तक तो बैलेंस होगा। अभी हमने लेजर का रिविजन सीखा, 12 महीने तक तो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करने का। बट 12वें महीने के एंड में, 12th मंथ के एंड में जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे, नॉमिनल मतलब ऑल इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंसेस, all incomes and all expenses, they get transferred to the last 2 ledger account, that is trading and P&L. तो कुछ P&L में चले जाएंगे, कुछ ट्रेडिंग में चले जाएंगे। अभी ये सब P&L वाले थे तो ये सब P&L में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं वेजेस कहाँ ट्रांसफर करते हो आप ईयर एंड पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कैन यू टेल मी द क्लोजिंग एंट्री फॉर वेजेस? Trading to wages. ट्रेडिंग टू वेजेस, दैट्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। इसलिए आपने देखा होगा कि वेजेस जहां जाता है ट्रेडिंग डेबिट में जाता है। तो ट्रेडिंग डेबिट में जो भी जाता है उसका ट्रेडिंग टू, पीएनएल डेबिट में जो भी जाता है उसका पीएनएल टू। आर यू गेटिंग दैट? तो ट्रेडिंग टू वेजेस, पीएनएल टू सैलरीज। अच्छा, कैरेज इनवर्ड्स कहाँ जाता है? Trading to carriage inward. What will be the closing entry for carriage inward? तो trading to carriage inwards account। तो carriage inward account में क्या लिखा होगा? बाय ट्रेडिंग। जैसे डेप्री में लिखते हो ना बाय पीएनएल, तो पीएनएल में 2 डेप्रीसिएशन। ऐसा कैरेज इनवर्ड में क्या लिखोगे 12वें महीने के एंड में? बाय ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में आ जाता है 2 कैरेज इनवर्ड। समझ में आ रही है बात? ये हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर क्लोजिंग डाउन ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स, incomes and expenses, and we are transferring them to trading or P&L. So on the same lines, can you tell me what is the closing entry for factory lighting, factory heating या factory lighting? Trading to factory Trading heating. to factory lighting and heating, बराबर है? What is the closing entry for bad debts? P&L to PNL to bad debt. P&L to bad debts. P&L to bad debts. Suppose there are no NRDD, OIDD, then it is simply P&L to bad debts. What is the closing entry for traveling expense? PNL to traveling expense. P&L to traveling expense. What is the closing entry for motive power? Trading to motive power. Trading to motive power. समझ में आ रहा है ये कैसे फ्रेम हो रहा है? जो आइटम ट्रेडिंग में जाती है उसका ट्रेडिंग टू, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। पीएनएल में जा रही है पीएनएल टू। कैन यू टेल मी द क्लोजिंग एंट्री फॉर परचेजेस? परचेजेस आर आल्सो नॉमिनल अकाउंट। Trading to purchase. Trading to purchase. Can you tell me the entry for gas, water and electricity? Trading to gas, water and electricity. Trading to gas, water, electricity. Can you tell me the closing entry for opening stock? Trading to opening. Trading to opening stock. Trading to opening stock. Last year का asset becomes this year का first expense. तो trading to opening stock. आपको याद होगा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम लोग करते थे क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री उल्टी, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ये साल का ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, नाउ कैन यू थिंक एंड टेल मी व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर सेल्स? सेल्स इज एन इनकम। Sales to trading. Sales to trading. trading. Yeah. ट्रेडिंग टू सेल्स या सेल्स टू ट्रेडिंग? Sales to trading. सेल्स टू ट्रेडिंग। व्हाई सेल्स टू ट्रेडिंग? Because sales Because sales is our income. सेल्स इज एन इनकम, तो जो क्रेडिट में जा रहा है उसका सेल्स टू ट्रेडिंग। अच्छा, कैन यू टेल मी द क्लोजिंग एंट्री फॉर रेंट रिसीव्ड? Rent received to trading. गलत नहीं. जवाब। To profit. To profit and loss. PNL. Rent received to PNL, because rent received goes in PNL credit side. Can you tell me the closing entry for interest received? interest received. Received to PNL. Interest received to PNL. Interest received to PNL. समझ में आ रहा है? PNL में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट जो लेजर होगा ना इंटरेस्ट रिसीव्ड का, उसमें टू PNL आ जाएगा 12th मंथ के एंड में।
12th मंथ के एंड में बैलेंस नहीं लिखोगे आप, सीधा 2 P&L और P&L में बाय इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड में 2 P&L, P&L में बाय रेंट रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड का क्लोजिंग एंट्री बता सकते हो? Commission received to Commission received to P&L. To P&L, commission received to P&L. So these are the closing entries for all expenses and incomes. Okay, these are the closing entries for all expenses and incomes. Now, two other important entries you need to learn about expenses and incomes. Okay, ध्यान से सुनना, बता रहा हूँ सब लोग. Two other entries for expenses and incomes: purchase returns and sales returns. What do you do with purchase returns? Trading to purchase returns. Think about it. Purchase trading to purchase. return to trading. Should it be Purchase trading return to purchase trading. return or purchase return to trading? Purchase return. Purchase return to Trading to purchase return. It Purchase is not return to trade. Purchase return to Purchase trading. return to trading. Purchase returns. Purchase it return is to trading. purchase returns to trading. Trading to purchase return नहीं है. क्यों? क्योंकि परचेज में से आप माइनस करते हो. एक्चुअली वो क्रेडिट पे लिखना चाहिए, लेकिन आप माइनस करते हो. तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग. नाउ होल्ड ऑन टू दैट थॉट. मैं आपको एंट्री लिख के बताता हूं. एंट्री इज परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग, नहीं परचेज रिटर्न टू परचेज. इट इज परचेज रिटर्न टू परचेज. तो होता क्या है कि परचेज रिटर्न अकाउंट डायरेक्टली ट्रेडिंग में नहीं जाता है. ये समझो आपका परचेज रिटर्न अकाउंट है इन योर लेजर. परचेज रिटर्न अकाउंट है, इधर आएगा आपका समझो बाय ए, बाय बी या बाय सन्ड्रीज. अगर आपने सब्सिडरी बुक से किया है तो याद है आप टोटल लिखते थे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक. तो ये समझो आपका 200, 300 या सन्ड्रीज लिखा है तो 500. ए और बी नहीं लिखा है, समझो सिंपली बाय सन्ड्रीज लिखा है. तो ये 500 आपका बाय सन्ड्रीज करके आया हुआ है फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक. 12 महीनों तक तो टू बैलेंस करते हो, बट 12वें महीने के एंड में आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे, आप इसको ट्रांसफर करोगे परचेज अकाउंट. समझा? और ये आपका परचेज अकाउंट है. परचेज अकाउंट में समझो इधर आया टू कैश, टू सन्ड्रीज. आपका परचेज बुक से टू सन्ड्रीज और कैश परचेज का कैश. तो इधर 200, इधर 700. और ये परचेज रिटर्न में क्या लिखा है? टू परचेज. तो परचेज में आएगा बाय परचेज रिटर्न 500 और ये चला जाएगा फिर में. तो ये चला जाएगा ट्रेडिंग में 200 नेट परचेज. दैट्स हाउ वी क्लोज डाउन एक्चुअली. So purchase returns are closed not by transferring them directly to trading account. पहले परचेज रिटर्न जाता है परचेज में और फिर परचेज जाता है ट्रेडिंग. ओके, दैट्स हाउ वी डू इट प्रैक्टिकली. थियोरी में हम लोग परचेज रिटर्न माइनस करके दिखाते हैं फाइनल अकाउंट में. टैली वगैरह करोगे तो माइनस प्लस जैसी कोई चीज होती नहीं है, उधर पूरा जर्नल एंट्री बेस्ड होता है. तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जब करोगे, टैली करोगे, तब ऐसे बंद करना है. परचेज रिटर्न को परचेज में ट्रांसफर करना है और परचेज को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है. ठीक है? तो जब ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज जाएगा तो सीधा नेट परचेज जाएगा. परचेज रिटर्न होगा ही नहीं फिर आपके ट्रायल बैलेंस. परचेज रिटर्न हैज फिनिश्ड, इट हैज गॉन टू ट्रेडिंग. परचेज ऑलरेडी कम हो गया, अभी नेट परचेज सीधा चला जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट. इज दिस क्लियर? सो परचेज रिटर्न का क्लोजिंग एंट्री. व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर परचेज रिटर्न? इज इट परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग या परचेज रिटर्न टू परचेज? What is the closing entry for purchase return? Purchase return to purchase. Purchase return to purchase, not purchase return to trading. It is purchase return to purchase. Okay. Similarly, can you tell me the closing entry for sales returns? Sales to sales returns. Sales to sales return. Sales to sales return on the same line. Sales to sales return. Logic समझा? Sales return सीधा ट्रेडिंग में नहीं जाता है. सेल्स रिटर्न बंद होके सेल्स में ट्रांसफर होता है और सेल्स बंद होके ट्रेडिंग क्रेडिट में चला जाता है. ओके, इसको शॉर्टकट भी है याद रखने के लिए. इफ एन अकाउंट इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, आपको डेबिट क्रेडिट तो पता है, आपने ट्रायल बैलेंस किया हुआ है. अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और उसको क्लोज करना है, उसको बंद करना है, तो गिव इट अ क्रेडिट. अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और उसको बंद करना है तो उसको क्रेडिट दो.
जैसे डेप्रीसिएशन डेबिट बैलेंस होता है, बंद करना है तो क्रेडिट दे दिया, तो P&L टू डेप्री। परचेज क्या होता है, डेबिट बैलेंस, बंद करना है तो क्रेडिट कर दिया परचेज को, तो ट्रेडिंग टू परचेज। सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको बंद करना है तो सेल्स को डेबिट दे दो, तो सेल्स टू ट्रेडिंग। कैरेज आउटवर्ड का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, उसको बंद करना है तो गिव इट अ क्रेडिट, तो P&L टू कैरेज आउटवर्ड। एडवर्टाइजमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, उसको बंद करना है तो गिव इट अ क्रेडिट, तो P&L टू एडवर्टाइजमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सेल्स रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, व्हाट इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न्स? Credit. सेल्स रिटर्न, Debit. नॉर्मल बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न्स इज डेबिट, उसको बंद करना है तो आई गिव इट अ क्रेडिट, तो सेल्स टू सेल्स रिटर्न। सेल्स कम हो रहा है इसलिए सेल्स डेबिट, और सेल्स रिटर्न बंद हो रहा है इसके लिए सेल्स रिटर्न क्रेडिट। परचेज रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, Credit. क्रेडिट, उसको बंद करना है तो गिव इट अ डेबिट, तो परचेज रिटर्न टू परचेज, परचेज रिटर्न टू परचेज। दैट इज अ शॉर्टकट वे टू रिमेंबर। जो नॉर्मल बैलेंस होता है अकाउंट का, उस अकाउंट को अगर आपको बंद करना है तो गिव द ऑपोजिट बैलेंस। डेबिट को बंद करना है, गिव इट अ क्रेडिट, क्रेडिट को बंद करना है, गिव इट अ डेबिट, ओके, एंड करस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट गोज टू ट्रेडिंग एंड P&L और परचेज और सेल्स। यहां तक समझ में आ गया? अभी ये सभी नॉमिनल अकाउंट्स, ओके, आई विल जस्ट थ्रो यू द एग्जांपल्स, यू टेल मी फटाफट कौन सा, व्हाट शुड बी द क्लोजिंग एंट्री फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। टेल मी द क्लोजिंग एंट्री फॉर फ्रेट इनवर्ड्स। Trading to freight inwards. Trading to freight inwards. What is the closing entry for only carriage? Trading to carriage. Trading to Normal carriage. carriage, only carriage. Trading to Carriage. carriage. What is the closing entry for delivery van expense? P&L to P&L to delivery. P&L delivery. to van. delivery van. What is the closing entry for insurance? P&L to P&L to What insurance. is the closing entry for discount received? Discount received to received to P&L. P&L. Received to PNL. P&L. What is the closing entry for bad debts recovered? Bad debts recovered to P&L. Bad debts recovered to PNL. What is the closing entry for purchases? Purchase. Trading Trading to to purchase. trading to Purchase. purchases. What is the closing entry for sales? Sales to trading. To Sales trading. What is the closing entry for opening stock? Trading to opening Trading stock. to opening Trading stock. to opening stock. What is the closing entry for sales returns? sales. Sales to Sales sales. returns. What is the closing entry for purchase return? Purchase return to Purchase return purchase. to Return purchase. to purchase. Now ये सब एक्सपेंस इनकम सब नॉमिनल अकाउंट बंद होके चले गए ट्रेडिंग P&L में। अब ट्रेडिंग एंड P&L themselves are nominal, उनको भी बंद करना पड़ेगा। अब आपको पता होगा अगर तो ट्रेडिंग अकाउंट बंद होके कहाँ जाता है? अरे gross P&L में profit. जाता है। ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या होता है? Gross profit. ग्रॉस Profit या gross loss. तो in case of gross profit, what is the closing entry of trading account? Trading ट्रेडिंग to gross profit. हाँ, ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है? P&L में जाता है। P&L. बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L हुआ। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट एन अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, net profit, net loss, these are not accounts, these are the difference balances. So I cut that gross profit ko. So what is my entry? Trading account Trading to debit P&L. to P&L. So if you are having gross profit, your journal entry is trading to P&L. Trading बंद हुआ, trading में to P&L, P&L में by trading. But हम लोग directly नहीं लिखते trading में to P&L by trading में to P&L और P&L में by trading directly नहीं लिखते। हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट और P&L में लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ बैलेंस। आपने देखा होगा मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट नहीं लिखता हूँ, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन एंड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, दैट इज जस्ट द बैलेंस ऑफ दोस टू अकाउंट। ट्रेडिंग बंद हो रहा है, P&L में ट्रांसफर हो रहा है।
So, in case of gross profit, what is the journal entry for closing trading account? It is trading to P&L. Trading to GP, GP to P&L, GP cut. It is trading to P&L. On the same lines, can you tell me what is the closing entry in case of gross loss? P&L to trading. Ulta. Gross loss to trading account. Gross loss to trading and P&L to gross loss. P&L to gross loss. Wapas gross loss is nothing but balance. So I cut it. What is my entry? P&L to trading. तो ग्रॉस प्रॉफिट के केस में what is the closing entry for trading account? So it is trading to P&L. And gross loss के केस में what is the closing entry? P&L to trading. P&L to trade. ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग एंट्री. ट्रेडिंग बंद होके चला गया P&L. अब लास्ट नॉमिनल अकाउंट लेफ्ट फॉर द एंड ऑफ द ईयर टू क्लोज डाउन. व्हाट इज दैट लास्ट नॉमिनल अकाउंट लेफ्ट टू बी क्लोज? P&L. Net profit. अकाउंट को बंद करना है. तो P&L अकाउंट में क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. और वो कहाँ ट्रांसफर करते हो आप? कैपिटल में ट्रांसफर करते हो. तो कैन यू टेल मी ऑन द सेम लाइंस व्हाट शुड बी द क्लोजिंग एंट्री फॉर P&L इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट? Capital to net profit. It's basically P&L to net profit, क्योंकि P&L में 2 नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन. और वो नेट प्रॉफिट आप क्या करते हो? कैपिटल में Add. ऐड करते हो. तो कैपिटल बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा मतलब कैपिटल क्रेडिट होएगा. तो इट शुड बी नेट प्रॉफिट टू कैपिटल. कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो नेट प्रॉफिट टू कैपिटल. तो P&L टू नेट प्रॉफिट टू कैपिटल. सो व्हाट इज द कंबाइंड एंट्री? P&L to capital. जैसे यहाँ पे किया ना हमने, ट्रेडिंग टू जीपी एंड जीपी टू P&L. कैन यू सी दैट? ट्रेडिंग टू जीपी, जीपी टू P&L, जीपी कट, इट इज ट्रेडिंग टू P&L. So P&L to NP, NP to capital, net entry is P&L to capital. So in case of net profit, what is the journal entry for closing P&L account? So it is P&L to capital. P&L to capital. But in case of net loss, can you frame an entry to close down P&L? Capital to P&L. कैसा मिला capital to P&L? It is net loss to P&L. Net loss to P&L. क्योंकि P&L में बाय नेट लॉस आता है ना, तो नेट लॉस टू P&L. एंड कैपिटल में क्या होता है? नेट लॉस सब्ट्रैक्ट होता है. तो कैपिटल कम हो रहा है, तो कैपिटल को डेबिट करो, तो कैपिटल टू नेट लॉस. तो ये नेट लॉस कट. व्हाट इज द एंट्री फॉर क्लोजिंग P&L विथ नेट लॉस? क्लोजिंग P&L विथ नेट लॉस, द एंट्री इज कैपिटल टू P&L. कैपिटल टू P&L. सो last two closing entries, one for trading account, one for P&L account. Trading account का closing entry क्या होगा in case of profit? P&L to trading. ना, Trading to P&L. gross profit के केस में trading to P&L, trading to GP, GP to P&L, GP cut, trading to P&L. So in case of gross profit, ये रहा first one. In case of gross profit, what is the closing entry for trading? It is trading to P&L. In case of gross loss, what is the entry? बोलो. P&L to trading. In case of gross profit, it is trading to P&L. Trading बंद होके P&L में जा ही रहा है. बट प्रॉफिट के साथ जा रहा है तो ट्रेडिंग टू P&L. लॉस के साथ जा रहा है तो P&L टू ट्रेडिंग. इज दिस क्लियर? सेम वे नेट प्रॉफिट, P&L को बंद करना है विथ नेट प्रॉफिट. व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर P&L विथ नेट प्रॉफिट? P&L to capital. P&L to capital. एंड व्हाट इज द एंट्री फॉर नेट लॉस? कैपिटल अपना P&L को कैपिटल में ट्रांसफर किया है विथ लॉस, तो इट इज कैपिटल टू P&L. नॉट दैट. ये सभी आपके नॉमिनल अकाउंट्स के ट्रांसफर एंट्री. नॉमिनल अकाउंट्स मतलब साल के जितने इनकम्स थे, जितने एक्सपेंसेस थे, सब बंद होके पहले चले गए ट्रेडिंग P&L में, फिर ट्रेडिंग बंद होके चला गया P&L में,
पीएनएल बंद होके चला गया कैपिटल में। अब बचे क्या? अब बचे लायबिलिटीज और एसेट। तो लायबिलिटीज और एसेट, डू दे गेट क्लोज डाउन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर? Is balance sheet an account of trading result? What is a sheet? It is just a Just a statement, statement. just a list. It is a list like your trial balance. Shows the values of assets and liabilities at the end of the accounting year. वो कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट में कभी टू और बाय नहीं आता है, तो उधर कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, याद रखना आप लोग। तो अगर आपने डेप्रीसिएशन चैप्टर याद रहेगा, तो डेप्रीसिएशन चैप्टर में आप मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट बनाते थे ऊपर। ईयर एंड पे क्या होता था? मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। डू वी यूज टू ट्रांसफर इट टू सम अदर अकाउंट? No, what we used to write? Buy balance carried down, to balance brought down. Remember? Buy balance carried down, to balance brought down. वैसा ही होता है practically. All the assets and all the liabilities, they are not closed. They are transferred to the next year in the form of balances, normal balances. Liability है तो to balance CD, buy balance BD. Assets है तो buy balance CD, to balance BD. वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन बुक कीपिंग में प्रथा चलती आ रही है कि ईयर एंड पे एसेट्स और लायबिलिटीज की एक क्लोजिंग एंट्री पास करनी चाहिए, जस्ट फॉर टैलिंग द बैलेंस शीट। के बैलेंस शीट टैली हो रहा है ना, लायबिलिटी टू एसेट की एक क्लोजिंग एंट्री मार के देख लेने का। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करते हैं, बाकी प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। टैली में आप देखोगे तो बैलेंस 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 वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। ओके, अब क्लोजिंग एंट्री का क्या फॉर्मेट होगा फॉर लायबिलिटी एंड एसेट? ओपनिंग एंट्री का आपको मालूम है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंट्री? जस्ट नाउ वी डिस्कस, इट इज एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल। ऑन द सेम लाइन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर एसेट एंड लायबिलिटी? क्लोजिंग एंट्री फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होना चाहिए? सिंगल एंट्री है, एक ही एंट्री है। Capital liability to asset. कैपिटल लायबिलिटी टू एसेट। अभी अभी बोला, जो अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस है उसको बंद करना है तो गिव इट अ ऑपोजिट बैलेंस। एसेट्स हैव गॉट डेबिट बैलेंस, उसको बंद करना है तो गिव इट अ क्रेडिट। लायबिलिटीज हैव गॉट क्रेडिट बैलेंस, उसको बंद करना है तो गिव इट अ डेबिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंस शीट एंट्री। बैलेंस शीट एंट्री, बैलेंस शीट मतलब पूरा बैलेंस शीट जो है, जितने लायबिलिटी है उसको डेबिट करो, जितने एसेट है उसको क्रेडिट कर दो, वो हो गया क्लोजिंग। और ये क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाते हैं? ओपनिंग एंट्री बन जाता है। ये ओपनिंग एंट्री बन के ओपन हो जाते हैं। तो आप नेट देखो तो क्लोजिंग में क्या किया? लायबिलिटी टू एसेट। ओपनिंग में क्या किया? एसेट टू लायबिलिटी। नलिफाइड, सब नलिफाई हो गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा वो एंट्री से। बट खाली थियोरेटिकल पर्पस के लिए आप दिखा दोगे ईयर एंड पे सब एसेट लायबिलिटी बंद किया और ईयर के बिगिनिंग में सब एसेट लायबिलिटी को वापस ओपन करके बुक्स में लेके आए। तो नॉमिनल अकाउंट के बहुत सारे एंट्रीज हमने सीखे। क्लोजिंग एंट्री, हर एक अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है ना, ट्रेडिंग में पीएनएल में, ट्रेडिंग में पीएनएल, फिर ट्रेडिंग भी बंद हो रहा है, पीएनएल में जा रहा है, पीएनएल भी बंद हो रहा है, कैपिटल में जा रहा है। वैसे आपका जो एसेट और लायबिलिटी है उसका एक ही क्लोजिंग एंट्री है। व्हाट इज दैट क्लोजिंग एंट्री? लायबिलिटी टू एसेट, खत्म। लायबिलिटी टू एसेट मतलब लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट, कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट। इज दिस क्लियर? मुझे एक बात बताओ अभी सोच के, प्रैक्टिकली ईयर एंड पे कौन से अकाउंट्स बंद होते हैं? Which account gets closed? Nominal accounts, incomes and expense. They get closed down and get transferred. They get transferred to trading P&L. Trading gets transferred to P&L. P&L gets transferred to capital. But do the liabilities and assets get closed down at the end of the accounting year? Sorry. No, they do not. They get carried forward as balances. Just for theory, we show this closing entry and then open it in the next year and show it as an opening entry. Okay. अब ये हो गए आपके ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। फंडा क्लियर है? ओपनिंग एंट्री किसका होगा? सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का होगा। क्लोजिंग एंट्री किसका होगा? सबका होगा। नॉमिनल अकाउंट्स का भी होगा और एसेट और लायबिलिटी का भी होगा, थियोरेटिकल पार्ट। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट एंट्री।
What are adjustment entry? What are adjustments? We discussed it at the chapter ka beginning mein. What are adjustments? Unrecorded transactions. So you know journal. The same journal entries are adjustment entries. Simple. All adjustment entries are normal journal entries because they are normal transactions which are unrecorded in the books. So all adjustment entries are, there may be rectification entries also, but they are normal journal entries. Normal journal entries which you pass. That is nothing but an adjustment. That is nothing but an adjustment. Unrecorded entries. Is that clear? Tell me, what is a journal entry for depreciation? Depreciation to asset. Depreciation to asset. So what is the adjustment entry for depreciation? अरे यार. Less from asset and अरे P&L adjustment entry I am asking. entry. Same आएगा ना, depreciation to asset. और फिर PN it is transferred to वो subtraction transfer from the entry है, वो capital. closing entry है. पर वो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होता है उसका क्या? कैपिटल से थोड़ी सब्ट्रैक्ट होता है डेप्रीसिएशन. अरे एसेट से सब्ट्रैक्ट होता है उसका क्या? अरे तो यही तो किया, डेप्रीसिएशन टू एसेट. Depreciation to asset, what are the two effects of depreciation? One effect, it goes to P&L debit as an expense. And asset से minus हो रहा है तो ये asset credit हुआ ना यहाँ पे. That is itself the adjustment entry. This is not the closing entry. This is the adjustment entry of depreciation. Actual journal entry. Depre to asset. Depre expense और asset कम हुआ. अब if I ask you what is the closing entry of depreciation? What will you answer? What is the closing entry of depreciation? Profit and loss. P&L to depreciation. Profit and loss to Depreciation to depreciation. And what is the closing entry for asset? It is not. अरे हाँ वो Capital asset. liability to asset. Liability to asset. Liability to asset. Okay. Liability to asset. One more example. Unrecorded purchase. What is the normal journal entry for unrecorded? What is the normal journal entry for purchase? Credit पे assume करना है तो credit purchase की entry क्या होती है? Purchase to party. Purchase to creditor. Right? Purchase to creditor, this is a normal. This is itself the adjustment entry. Adjustment entry is also purchase to creditor. Adjustment entry is same as normal journal entry. Purchase to creditor. But if I tell you what is the closing entry of purchase? Trading to purchase. Trading to purchase. What is the closing entry for creditors? For Liability to creditor. asset. Liability to asset. Liability की list में चला जाएगा year end. Right? That is the closing entry for creditor. This is not closing. This is adjustment. Adjustment मतलब जो plus minus आप कर रहे हो. That is the actual journal entry. That is the actual journal entry. Tell me the entry for unrecorded sales. Sales की entry क्या होती है? Credit sales की entry. Debtor to sales. Debtor to sales. बराबर है? What is the adjustment entry for unrecorded sales? Same. Debtor to sales. Debtor to sales. But what if I tell you what is the closing entry for sales? Sales to Sales to trading. What is the closing entry for debtor? So liability to asset. liability to asset. Liability. और मुझे liability to asset वाला समझा नहीं, like what will be the liability, like all the liabilities, All the liabilities of the balance sheet and all the assets of the balance sheet. Full balance sheet. Full balance sheet. पूरा balance sheet में जितना liabilities है सब. All liabilities debit. Machinery, land, building, equipment, premises, investments, FDs, stock, debtors, bills receivable, prepaid expense, all assets credit and all liabilities debit. Capital, loans, reserves, general reserve, you will have your creditors, bills payable, outstanding expense, all debit, all liabilities debit to all assets. All right? At the end of the year. तो समझ में आ रहा है एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब? एडजस्टमेंट एंट्री मतलब नॉर्मल जर्नल एंट्री. कैन यू टेल मी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. Advertisement to goods. Advertisement to goods distributed as free sample या purchases anyway. So what is the adjustment entry for goods distributed as free sample? Same. It is advertisement to goods distributed. Advertisement to P&L to advertisement. वो closing है.
मैं एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा हूँ, एडजस्टमेंट एंट्री क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लोजिंग एंट्री अगर आपको पूछा तो बाद में आगे करो, क्वेश्चन में आपको क्लियर कट दिया होगा एडजस्टमेंट एंट्री करना है कि क्लोजिंग एंट्री करना है। एडजस्टमेंट एंट्री करना है तो ये सेम जर्नल एंट्री, क्लोजिंग एंट्री करना है तो फिर क्लोज करो, ठीक है। अच्छा, what is the adjustment entry for goods withdrawn for personal use? Drawings to Drawings to goods withdrawn for personal use, बराबर है, ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री है। बट इफ आई टेल यू व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज का क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? Goods withdrawn from personal use to trading. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज टू ट्रेडिंग, आपने देखा होगा ट्रेडिंग क्रेडिट बाय गुड्स विड्रॉन, गुड्स सैंपल का भी गुड्स गिवन है सैंपल टू ट्रेडिंग, गुड्स विड्रॉन का भी गुड्स विड्रॉन टू ट्रेडिंग। अच्छा, व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर ड्रॉइंग्स? सोचो, इट्स ऑन द, आई विल गिव यू अ हिंट, it's on the same line of purchase return and sales return. Now use your brain. Capital to drawing. Capital to drawing. Very good. It is capital to drawings. It is capital to drawings. समझ में आया क्या किया? ड्राइंग्स आप क्या करते हो? Subtract it from Subtract from capital. capital. Do we show it as an asset? No. It is an asset in a way, but we don't show it like an asset. We subtract from capital and we show it. So it gets transferred to capital. The drawings get transferred to capital. And capital, net capital दिखता है आपको फिर बैलेंस शीट। तो कैपिटल कम हो रहा है तो कैपिटल डेबिट, ड्राइंग्स क्रेडिट, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस था, बंद करना है तो गिव इट अ क्रेडिट। तो कैपिटल टू ड्राइंग, दैट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर ड्राइंग। ओके, so that was the closing entry and adjustment entry and opening entry and adjustment entry, सबका all assets and all liabilities, all expense and all income. Once again let's revise in brief, फटाफट brief में revise करते हैं। opening entry किसका होगा बताओ मेरे को, be the opening entry of only assets, liabilities, Assets, liability. only assets and liability. What is the format of opening entry? Asset to liability to Asset capital. to liabilities to capital. asset to liabilities to capital, बराबर है। closing entry किसका होगा? Only assets and liabilities. closing अरे closing entries is for सबका। all nominal Expense. expense, income, assets, liabilities. Where do we transfer all the expense and incomes? expenses and income to trading Trading and and P&L. P&L. We transfer them to trading and P&L. All expenses are and incomes are transferred to trading and P&L. So जो ट्रांसफर एंट्री है वही क्लोजिंग एंट्री है। एक्सपेंस इनकम बंद होके चले गए, ट्रेडिंग कहाँ जाता है बंद होके? Where do we transfer the trading account? Trading to P&L. And P&L कहाँ ट्रांसफर होके जाता है? P&L to capital. कैपिटल में चला जाता है। In case of net profit and gross profit, it is trading to P&L, P&L to capital. In case of gross loss and net loss, it is P&L to trading and capital to P&L. फिर लाइबिलिटी और एसेट का क्लोजिंग एंट्री थियोरेटिकल पर्पस के लिए जो हम करते हैं, व्हाट इज द एंट्री फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज एंड एसेट्स? Capital liability to कैपिटल लाइबिलिटी टू एसेट्स। उसके बीच में एक ड्राइंग्स भी आ जाता है। ड्राइंग्स का क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? Drawings. Capital to capital to drawings. कैपिटल कम हो रहा है तो कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग्स, इधर लिखा ना क्लोजिंग एंट्री फॉर ड्राइंग, कैपिटल टू ड्राइंग, ये सब हुए क्लोजिंग। अब एडजस्टमेंट एंट्री, व्हाट आर एडजस्टमेंट एंट्री? एक्चुअल जर्नल एंट्री जो आप इफेक्ट देते हो ना प्लस माइनस, उसी के बेसिस पे आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है फाइनल अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन, व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन? Depreciation to asset, that is itself the adjustment entry, normal journal entry. What is the adjustment entry for appreciation? Asset to appreciation. Asset to appreciation. Normal journal entry is adjustment entry, asset to appreciation. What is the adjustment entry for outstanding expense? What is the normal journal entry for outstanding expense? Expense to outstanding Expense to outstanding expense. तो adjustment entry भी क्या होगा? Expense to assets. Expense to outstanding expense. What is the adjustment entry for income receivable? Income receivable to Income income. Income receivable to income. What is the adjustment entry? Same as normal journal entry. Income receivable to income. What is the normal journal entry of prepaid expense? Prepaid expense. Prepaid expense to Expense to expense. expense. Normal journal entry.
To cash. To cash. Normal journal entry is prepaid expense to cash. But adjustment entry is what? Prepaid expense का. Prepaid expense to expense. Prepaid expense to expense. यहाँ पे अलग हो जाता है. Prepaid expense की normal journal entry prepaid expense to cash है. Adjustment entry is prepaid expense to expense. क्यों? क्योंकि ये adjustment एक तरह का rectification है. अगर आपको याद होगा मैंने बताया भी था, आपकी सैलरी सपोज 12,000 है, आपने सैलरी डेबिट कर दी 14 से. 14 से तो करनी नहीं थी, गलती से कर दिया 14 से, तो अभी 2 का क्रेडिट दो सैलरी को, गिव अ क्रेडिट ऑफ 2,000 टू सैलरी. आपका एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगा? तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी. या फिर ऐसे सोचने का, फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हो? सैलरी प्रीपेड एक्सपेंस क्या करते हो आप? एक्सपेंस में ऐड करते हो कि माइनस? माइनस. माइनस. तो एक्सपेंस बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होगा. तो एक्सपेंस कम हो रहा है मतलब एक्सपेंस क्रेडिट. तो प्रीपेड एक्सपेंस इज एसेट. यू रिमेंबर प्रीपेड एक्सपेंस इज एसेट. एसेट बढ़ रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है. एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट. प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. नॉट दैट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑल्सो यू कैन डू द सेम वे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते हो आप एक्सपेंस में? ऐड करते हो. एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? हेलो, एक्सपेंस बढ़ा. ऐड किया तो एक्सपेंस बढ़ा, राइट? तो एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. एंड व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट. तो एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एक्सपेंस बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट. इनकम रिसीवेबल. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इनकम रिसीवेबल? What is the effect of income receivable? Income receivable. To Effect. What do you do in final accounts? We income receivable is added to the Added to asset income and assets. and credited to P&L. Credited to P&L, add to income and assets. तो Yeah. income बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है. Income बढ़ रहा है तो क्या करने का? Credit. हाँ. और income receivable क्या है? Asset या liability? Asset. Asset. Asset भी बढ़ रहा है तो इनकम रिसीवेबल टू इनकम. एसेट बढ़ा तो डेबिट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. व्हाट अबाउट इनकम रिसीव इन एडवांस? फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हो इनकम रिसीव इन एडवांस? Income to income received in advance. हाँ, माइनस करते हो ना इनकम में से एंड लायबिलिटी में दिखाते हो. तो इनकम कम हो रहा है तो इनकम डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस इज अ लायबिलिटी. लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट. इनकम घटा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट. इट इज इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. Is that clear? So these are your adjustment entries for 4 items. Once again, what is entry for outstanding expense? What is the Adjustment entry for outstanding expenses. expense to outstanding? Expense to outstanding expense. Expense but याद रखने का, एक्सपेंस में ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है? ऐड हो रहा है तो एक्सपेंस डेबिट, लेस हो रहा है तो एक्सपेंस क्रेडिट. एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. व्हाट अबाउट प्रीपेड एक्सपेंस? एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस. Prepaid expense Prepaid expense to expense. What about income receivable? Adjustment entry for income receivable. income to income receivable. Income receivable. Yeah, income to income receivable. Income receivable to income. Income receivable to income. Income में ऐड हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है एंड इनकम रिसीवेबल इज एन एसेट. तो एसेट बढ़ रहा है तो इनकम रिसीवेबल टू इनकम. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट एंड एसेट बढ़ा तो डेबिट. एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. Income to income received. Income to income received. Why income to income received in advance? That is the Income liability. कम हो रहा है, minus and income received in advance is liability. So income to income received in advance. Is that clear? Can you tell me the adjustment entry for goods lost by fire? Lost by fire to goods lost by Lost by fire to goods lost by fire. Can you tell me the adjustment entry for? Lost by fire can come in trading account credit. वो closing entry हुआ. Yeah. Goods lost by fire to trading, that is the closing entry. I'm not talking about closing, I'm talking about adjustment.
Adjustment entry are your same as your actual entries, right? So loss by fire to goods lost by fire, same entry. What if there is some insurance claim? Then what will be the adjustment entry with insurance claim? Insurance Insurance claim, goods to lost by goods fire. lost by What is the adjustment entry for goods distributed as free samples? Advertisement to goods distributed as free Distributed samples. What is the adjustment entry for unrecorded sales? Debtor to sales. Debtor to sales. What is the adjustment entry for unrecorded purchase? creditor Purchase to purchases to creditor. creditor. Purchase to creditor. What is the adjustment entry for unrecorded sales returns? Sales returns to Sales debtor. return to debtor. What is the adjustment entry for unrecorded purchase returns? Creditor to Creditor purchase to returns. purchase returns. What is the unrecorded entry? What is the adjustment entry for depreciation? Depreciation Debit to to asset. Depreciation to asset. Adjustment entry for appreciation. Asset to appreciation. Asset to appreciation. Now think. Adjustment entry for closing stock. Adjustment entry for closing stock. Trading to closing stock. trading to Closing stock to trading. Closing to Closing stock to trading. Closing stock to trading. But ये तो closing entry लग रहा है. even though it is closing, it is subtracted from the purchase. No? Yeah. What is closing stock? The left out stock that hasn't been sold throughout the So year. can I say that is prepaid purchase? That's prepaid expense. Right? Closing stock is a type of prepaid expense. Tell me what is the journal entry, adjustment entry for prepaid expense? अभी किया हमने. What is the adjustment entry for prepaid expense? Prepaid expense. Prepaid expense to expense. तो closing stock का क्या है? Closing stock to purchase है in a way. आप purchase में से minus कर रहे हो. But minus करने के जगह आप क्या करते हो? Trading credit. ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखाते हो. इसलिए एंट्री क्या बनती है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. ये सेम चीज है. प्रीपेड एक्सपेंस के जगह क्लोजिंग स्टॉक एंड एक्सपेंस के जगह परचेज. इट इज वन एंड द सेम. तो क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. इट इज वन एंड द सेम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो एडजस्टमेंट एंट्री है. क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग इज एन एडजस्टमेंट एंट्री. But what is the closing entry of closing stock? There must be some closing entry of closing stock. Capital liability to asset. Exactly. Capital liability to assets. Why? What is closing stock? Closing stock was an asset. So it's a part of assets at the end of the year. So liability to asset में चला जाएगा उसका closing entry. This is the closing entry of closing stock. Liability to assets. But what is the adjustment entry of closing stock? Same only. It's No. Closing stock to trading. stock to trading. Closing trading is like prepaid expense to expense. Suppose I ask you, what is the adjustment entry for prepaid salary? What is the adjustment entry for prepaid salary? Prepaid salary to salary. Prepaid salary to salary, right? What is the closing entry of salary? Salary to PNL. PNL to salary. PNL to salary. PNL to salary. Expense है ना, तो PNL to salary. What is the closing entry of prepaid expense? Prepaid salary? Prepaid salary to salary. Closing entry. not entry. Liability to asset. Capital liability to asset, because prepaid salary goes in assets na. So capital liability to assets. Capital liability to assets. Adjustment entry for prepaid salary is prepaid salary to salary. Closing entry is liability to asset. And closing entry for salary is P&L to salary. Got that? Similarly, adjustment entry for closing stock. What is the adjustment entry for closing stock? Closing stock to purchase. Closing stock to trading. Closing stock to trading. What is the closing entry for closing stock? Liability Liability to to assets. assets. And what is the closing entry for trading account? Trading to P&L. Yeah, P&L to trading in case of gross profit. Yeah, gross. Got it?
ट्रेडिंग इज नॉमिनल, नेचर ऑफ द अकाउंट बैक ऑफ द माइंड पे याद रखो। ट्रेडिंग इज नॉमिनल तो वो जाता है में, क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट तो वो जाता है लायबिलिटी टू एसेट में, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री इज क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। ओके, सो ऑन दैट नोट वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। फटाफट करते हैं, जितना होता है आज एंट्रीज, बाकी का कल देख लो। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम के साथ वापस आएगा सब एंट्रीज, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, एडजस्टमेंट है। अच्छा, ये सब एंट्रीज कौन से जर्नल में रिकॉर्ड होंगे? Journal proper. जर्नल प्रॉपर। और कोई सब्सिडरी बुक्स में कर सकते हो इसको? Sir, adjustment entry for unrecorded cash sales and purchase would be कैन गो इन कैश बुक, क्रेडिट सेल्स परचेज कैन गो इन परचेज बुक, सेल्स बुक, बट यहाँ पर सब 11 12 स्टैंडर्ड, सब थियोरी में सब जर्नल प्रॉपर। ऑल ओपनिंग एंट्रीज, ऑल क्लोजिंग एंट्रीज, ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज, all rectification entries, everything one सार्वजनिक book, that is journal. Practically unrecorded parts go in respective subsidiary books, but यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा journal proper. The chapter's name is only journal proper. So this chapter will be there for your final exam also. नहीं, फाइनल एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये खाली आपके नॉलेज बेसिस के लिए है, बट इम्पोर्टेंट है, आगे जाके भी काम आएगा हायर स्टैंडर्ड्स में एंड ऑल। कॉलेज में कंफर्म करना, आई थिंक एनएमईटी बाय वोंट टेक दिस चैप्टर, डाउटफुल है, जस्ट कंफर्म इट वेदर यू हैव इट इन कॉलेज। बट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता चलेगा ना कैसे बंद हो रहा है, कैसे ओपन हो रहा है, पूरा 360 डिग्री आपका अकाउंट कंप्लीट होता है विद दिस चैप्टर। पास ओपनिंग एंट्री, सबसे पहला क्वेश्चन है पास ओपनिंग एंट्री, जरा सोच के बताना। ओपनिंग एंट्री, फर्स्ट वन, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री किसका होता है? Assets and liability. एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो उधर दिख रहा है कैश, व्हाट इज कैश? Asset. एसेट। व्हाट इज बैंक? एसेट। व्हाट इज अकाउंट रिसीवेबल? एसेट। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब डेटर्स। इन्वेंट्री, क्या पेज नंबर है? अरे शीट से शेयर किया है कल ही ग्रुप पे, इमेज है, इमेज। sir, it is thoda blur. थोड़ा ब्लर है, थोड़ा आंख को स्ट्रेन आएगा, जूम करके देखो। कैश इज 10,000, बैंक इज 4,000, अकाउंट रिसीवेबल 6,000, दैट इज एसेट। इन्वेंट्री क्या है? Asset. इन्वेंट्री इज एसेट, इन्वेंट्री मींस ओपनिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? Liability. लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? Asset. गुडविल। Asset. अकाउंट पेबल, Liability. टेकन। Liability. इन्वेस्टमेंट्स, Asset. लीज होल्ड प्रीमाइसेस। Asset. Asset. पास कर दो एंट्री, स्टार्ट करो। पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट, सो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 7,000, I think. Inventory account debit is 7,000. Yes, correct, 7 है. Prepaid expense account debit. Prepaid expense account debit. This will come in exam. 1,000. Yeah, I'm planning to put it. I'll put it in the test. अपना exam में डाल दूंगा. Okay, opening, closing and adjustment. Otherwise, you won't study on. Sir, bank account is 4,000. Account receivable. Bank account is 4,000. 4,000 and account receivable is 6,000. Yeah, bank account is 4 and account receivable is 6,000. It's there for the test. Journal के साथ ही I'll ask. जो journal का question है ना, उसी के अंदर opening, closing, adjustment entry mix हो जाएगा. It will be there for college का exam. College का exam you ask in college. Doubtful है, रखना उनका. मेरा exam में रहेगा 31st वाला.
अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, $6,000 है. ओके. कैश, बैंक, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, अकाउंट रिसीवेबल और क्या एसेट्स में है? गुडविल है. गुडविल अकाउंट डेबिट, Investment and leasehold premise. 5,000. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, 6,000. leasehold premises account debit, 5,000. टू liabilities पे जाओ, liabilities पे जाओ. टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से स्टार्ट करो. पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, दैट इज 2,000. टू account payable. What are account payable? Creditors. Creditors, very good, 2,000. Loan taken is another liability to loan taken. This is 4,000. ये टैली हो रहा है क्या? कुछ मिसिंग है यहाँ पे? क्या आएगा? Capital. कैपिटल. 6,000. बिना कैपिटल के बिजनेस हो ही नहीं सकता है. कैपिटल ढूंढना पड़ेगा आपको. कैसे ढूंढते थे हम लोग, याद है ओपनिंग एंट्री में? डेबिट माइनस क्रेडिट. डेबिट माइनस क्रेडिट. So 14, 21, 22, 28, 33, 39, 44 minus 440 minus 446. 36,000 should be your capital. 36,000 should be your capital. Is that clear? So that's your opening entry. ऐसा ही फॉर्मेट में आपको आएगा एग्जाम में. जर्नल के अंदर ही होगा. ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री. क्या करना है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया होगा. ओके, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है. दिस इज योर ओपनिंग एंट्री, फर्स्ट वन. सेकेंड वन. सेकेंड वन का लास्ट पार्ट पढ़ो. सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पास क्लोजिंग एंट्री. पास क्लोजिंग एंट्री. व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर क्लोजिंग एंट्री? देखो अभी उधर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट दी गई है और बोला है कि क्लोजिंग एंट्री पास करो. तो क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? Liability capital. लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट. अभी आपके इजीनेस के लिए वहां पे सब अंडरलाइन करके दिया हुआ है. तो यू कैन स्टार्ट विद द एंट्री. स्टार्ट विद बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी. तो बैंक ओडी अकाउंट डेबिट 3,000. then income received in advance, that is a liability. income received in advance account debit. ये हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे हैं. समझ में आया? कौन सा डेट पे पास होगी? लास्ट डेट ऑफ द ईयर. ओके, so income received in advance debit, then supplier account debit. Supplier account debit 4,000. What do you mean by supplier? Creditor. Creditor. Then bills payable account debit. Bills payable account debit. बस आई थिंक 4 लाइबिलिटीज थे. Capital. एक और आएगी. यस, कैपिटल. बिना कैपिटल के नहीं कर सकते आप बिजनेस. तो कैपिटल भी आएगा. कैपिटल के लिए जगह छोड़ दो, बाद में ढूंढ लेते हैं कैपिटल को. टू इनकम रिसीवेबल अकाउंट. टू इनकम receivable account, that is 1,000. to customer account, that is 10,000. to patents account,
patent are assets, that is 5,000. To freehold property account, that is another asset. To freehold property account, that is 4,000. Bills receivable है 2,000, तो to bills receivable account 2,000. That's it. What is the value of capital? 5 plus 1, 9 plus 2, 11, 21, 22 minus 10. 12,000 आ रहा है मेरे को, कैपिटल चेक करो. Are you getting it? 12,000 should be my capital. Check. और format समझा आपको? Opening is asset to liability, closing is liabilities to asset. कैपिटल दोनों जगह बैलेंसिंग फिगर ढूंढना है, एक जगह क्रेडिट में, एक जगह डेबिट में. ओपनिंग एंट्री कौन से डेट पे पास होती है? फर्स्ट डेट. क्लोजिंग एंट्री कौन से डेट पे पास होती है? लास्ट थर्ड वन अगेन पास क्लोजिंग एंट्री. देखो दिया हुआ है पास क्लोजिंग एंट्री. मुझे बताओ परचेज का क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? Trading. ट्रेडिंग टू परचेज. रिटर्न इनवर्ड का क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न. Sales to sales सेल्स return. टू सेल्स रिटर्न. सेल्स का क्या होगा? Sales to सेल्स टू trading. ट्रेडिंग. रिटर्न आउटवर्ड का क्या होगा? परचेज रिटर्न का. Purchase return to purchase. परचेज रिटर्न टू परचेज. रिटर्न टू परचेज. फिर वेजिस का क्या होगा? Trading to वेजेस. कैरेज का क्या होगा? Trading to carriage. सैलरीज का क्या होगा? P&L to salaries. एडवर्टाइजिंग का क्या होगा? P&L to advertisement. डिप्रीसिएशन का क्या होगा? P&L to depreciation. डिविडेंड का क्या होगा? डिविडेंड टू पीएनएल डिविडेंड टू इनकम है. डिविडेंड टू पीएनएल. रॉयल्टी पेड का क्या होगा? रॉयल्टी पेड. Trading to royalty. फ्रेट एंड ड्यूटी का क्या होगा? ट्रेडिंग टू फ्रेट Trading to अभी freight. आपकी मर्जी, अगर आपको सब अलग अलग करनी है सब अलग अलग एंट्रीज करो, या फिर जो ट्रेडिंग डेबिट्स है दोज यू कैन क्लब, ट्रेडिंग क्रेडिट्स यू कैन क्लब, पीएनएल डेबिट्स यू कैन क्लब, पीएनएल क्रेडिट्स यू कैन क्लब. परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न अलग से ही करना पड़ेगा. तो 6 एंट्रीज में आप इन सबको मर्ज कर सकते हो. ठीक है. अगर क्लबिंग नहीं जम रहा है तो अलग अलग है, सबका अलग अलग एंट्री करो. ठीक है, कोई बात नहीं. इधर अमाउंट्स नहीं दिया है, खाली एंट्रीज पे फोकस करना है आपको. अमाउंट अगर सपोज रहेगा क्वेश्चन में तो सेम छाप देने का. तो पहले एंट्रीज अच्छे से कर लो, आगे आएंगे बाद में अमाउंट्स वाले भी. तो ट्रेडिंग वाले डेबिट साइड वाले मैं सब साथ में लिख रहा हूँ. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस to wages to carriage to royalty and to freight and duty. ये सब मैंने ट्रेडिंग डेबिट्स वाले मर्ज कर दिए. वैसे ही ट्रेडिंग क्रेडिट वाला सेल्स टू ट्रेडिंग वो मैंने अलग से दिखा दिया. ओके. नरेशन सेम है सबका. बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास, बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास सबका सेम है. क्लोजिंग एंट्री पास्ट फॉर सेल्स, क्लोजिंग एंट्री पास्ट फॉर परचेज, क्लोजिंग एंट्री पास्ट फॉर रॉयल्टी. अगर साथ में किया तो क्लोजिंग एंट्री पास्ट फॉर परचेज, वेजेस, कैरेज, रॉयल्टी. इधर यू कैन राइट, आई विल राइट इट इन शॉर्ट नरेशन. This is being closing entry past for purchase, wages, carriage, royalty and freight.
So सिर्फ being closing entry pass नहीं लिख सकते? चल जाता है, वो भी चल जाता है, वो भी चल जाता है. सेल्स टू ट्रेडिंग. ओके. एसेट्स लायबिलिटीज में वो भी इट्स फाइन. एक्सपेंस इनकम है तो वी राइट थोड़ा नेम्स एंड ऑल. इधर भी चल जाता है सिंपली बाय क्लोजिंग एंट्री, बाय एसेट्स लायबिलिटी का भी ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री दोनों में चल. बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास्ट. सर ये डेप्रिसिएशन क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? किसका? डेप्रिसिएशन. नहीं सर, अभी आपने ए वाला लिखा है ना, क्लोज नरेशन, हाँ, तो उसका इतना बड़ा लिखने का रहता है. सादा सीधा बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास बोला ना, चलता है. सिंपली बाय बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास. क्योंकि एग्जाम में एनएमडीवाई में पूछते भी है ना, तो एक दो आइटम्स ही आता है. वेजेस आएगा, रॉयल्टी आएगा, ऐसा 2 आइटम. ये प्रैक्टिस के लिए 2 आइटम्स लिखवाया है. तो बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास फॉर वेजेस, बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास फॉर कैरेज, ऐसा 1-2 आइटम्स ही आता है ना. दैट्स फाइन. नरेशन में इतना लोड मत लो. सिंपली बाय बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास तो भी चलेगा. Then you can also write being transfer entry pass, या being wages transferred, being carriage transferred. Transfer entry भी कहते हैं. Transfer entry, closing entry is one and the same. Then we have return inward and outward, so that is sales to sales returns. Yes, return inwards भी लिख सकते हो. परचेज रिटर्न्स का आएगा रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न टू परचेज. पीएनएल डेबिट वाला सब मर्ज करो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यू गॉट सैलरी अकाउंट टू एडवर्टाइजिंग अकाउंट टू depreciation account to, बस 3 ही. This is being closing entry past for salary, advertisement, depre. And the last one is income. So dividend to PNL. Dividend account debit to PNL. These are your closing entries. Check कर लो. Now come the most important entries. ये वाला क्लियर है सबको? क्लोजिंग sorted. All closing entries, assets, liabilities, incomes, expenses, sales return, purchase returns. Okay. See the So can you send a clearer picture after the lecture? I'll try to find. I'll send it one. I'll get it. Okay. भेजता हूँ. फोर्थ वाला देखो. अभी फोर्थ वाला क्या दिया? एडजस्ट का मतलब क्या? एडजस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड, कमीशन रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस. एडजस्टमेंट एंट्री करना. So what is the adjustment entry for outstanding salary? Salary to outstanding. Salary to outstanding salary. तो लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री करना है. एडजस्टमेंट एंट्री में क्लोजिंग एंट्री साथ में मत चिपका देना. अभी खाली एडजस्टमेंट एंट्री. एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करोगे. तो एडजस्टमेंट एंट्री में खाली एडजस्टमेंट एंट्री. ओके. सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. ओके. कितना है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी? दैट इज 10,000.
being outstanding salary adjusted. Being outstanding salary adjusted. एडजस्टमेंट एंट्री में एक्चुअल जर्नल एंट्री जो आप करते हो फाइनल अकाउंट्स में प्लस माइनस, चाहे वो नॉर्मल जर्नल एंट्री हो चाहे वो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो, वही एंट्री आपको पास करनी है यहाँ पे, नॉर्मल या रेक्टिफाइड एंट्री वॉट एवर इट इज, दैट्स योर एडजस्टमेंट एंट्री. कैन यू टेल मी द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस? Prepaid provisions to insurance. Prepaid insurance to insurance. Prepaid insurance to insurance. That is how much? 1,000. Being prepaid insurance adjusted. Being prepaid insurance adjusted. You can also write being adjustment entry passed for prepaid insurance. ऊपर closing entry passed, नीचे adjustment entry passed. Okay. Then commission receivable. What is the adjustment entry for commission receivable? कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन. कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन. ये कमीशन में ऐड होता है तो कमीशन बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट, और कमीशन रिसीवेबल इज एसेट तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट. कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन. कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन, दैट इज 1,000. 1,000 being commission receivable adjusted. Being commission receivable adjusted. Then you have interest received in advance, 300. What is the adjustment entry for interest received in advance? Interest to receivable. Interest to interest received in advance. Interest received in advance is a liability. एक और शॉर्टकट है ये 4 आइटम्स को याद रखने का, लायबिलिटी या एसेट. एसेट है तो डेबिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट. प्रीपेड इज एसेट ना, तो प्रीपेड डेबिट होएगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी, तो एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग. लायबिलिटीज हैव गॉट क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट. इनकम रिसीवेबल इज एसेट, इनकम रिसीवेबल टू इनकम, and income received in advance is liability, so income to income received in advance. Interest to interest received in advance. Interest कम हो रहा है and interest received in advance is a liability. So being interest received in advance adjusted. Interest received in advance adjusted. So, is it okay if we write one common narration for all the 4th Depends in the problem. If they have asked you एक ही transaction में सब, तो 2 entries. But advisable है, जितना entries आप कर रहे हो ना separately, उतना narrations लिखो. Short में लिखो, but write the narration. Okay, sir. Entries अगर different है ना, तो write different narration. Combined entry है तो single narration will do. Okay, sir. See the next one, fourth one. Fourth one तो क्या, sorry, fifth one. Patents 20,000 for 10 years. What does this mean? Patents 20,000 for Prepaid. 9. Write off by 2,000 each year. हाँ. Patents क्या होता है बिजनेस के लिए? Assets. Assets होता है. Assets होता है. तो 10 years क्या इंडिकेट करता है? Prepaid. No, depreciate. We need to depreciate it by Depreciate. पर ईयर कितने से डेप्रिशिएट करोगे? 2,000. You estimate scrap value achieved. Okay, 20,000 Yeah. divided by 10, that's 2,000. बराबर है? तो इधर क्या करना है? This is a hidden adjustment. याद है आपने सम में किया था ये? Hidden adjustment है तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है कि क्लोजिंग एंट्री करनी है? कौन सी एंट्री? Adjustment. adjustment. एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा फॉर डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स? Depreciation to Depreciation patent. Depreciation account debit
to what? Hello. Patents. Patents. You're depreciating patents. So depreciation account debit to patents account. इसलिए you can also write patents written off account debit to patents account. Okay. Depreciation to patents या फिर patents written off account debit to patents account. Sir, Depreciation. is it necessary to show the working note? No. Working note you can show it in rough calculations. Okay. For your understanding I'm making. बाकी working notes rough. उसका कोई marks नहीं है. So depreciation या patent written off to patents कितना? 20,000 या 2,000? 2000. 2,000. 2,000. Narration लिखना है being adjustment entry passed for depreciation on patent. Being adjustment entry passed for depreciation on patent. डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा है दिमाग में? ओपनिंग एंट्री क्या है, क्लोजिंग एंट्री क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? ओपनिंग एंट्री मतलब एसेट टू लायबिलिटी, क्लोजिंग मतलब लायबिलिटी टू एसेट. क्लोजिंग ऑफ एक्सपेंस इनकम इज थ्रू ट्रेडिंग एंड पीएनएल, एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज आर नॉर्मल जर्नल एंट्री. एडजस्टमेंट्स देख के एडजस्टमेंट. ओके, विल डू द लास्ट वन एंड देन वी स्टॉप. सिक्स्थ वन, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे. सिक्स्थ वन देख लो एक. Insurance, yes, insurance of 2,000 was paid for year ended 30th June 91. अभी आपको ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ईयर एंडिंग दिया हुआ है, वो ब्लर हो गया है. इट इज 31st March 91. दैट ईयर एंडिंग इज 31st March 91. ठीक है. 3 months is prepaid. So 3 months it is prepaid. Can you see that? 500 is prepaid. March 91 is the year ending. So I'll just show you a small working note. Insurance for 12 months, it is how much? 2,000. And how many months prepaid it is? 3 months it is prepaid. तो 3 months का कितना होगा? 12 months का 2,000 है तो 3 months का 500 rupees. 500 is prepaid insurance. Did you understand this part? 500 is prepaid insurance. ये समझ में आया आपको? अब सोच के बताओ इसका कौन सा एंट्री करना है? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री. Adjustment. What is the adjustment entry for prepaid expense? Outstanding Prepaid insurance to insurance. Prepaid insurance to insurance. Prepaid insurance to insurance. How much? 2,000, 1,500, 500. 500. 500 was prepaid. वही करते हो ना आप, less from insurance and assets. उसी का ये एडजस्टमेंट एंट्री पहले आता है जर्नल प्रॉपर में और फिर वो इफेक्ट जाता है फाइनल अकाउंट प्लस माइनस. दिस इज बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड. बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड. प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड या एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस. सो ऑन दैट नोट वी स्टॉप फॉर टुडे. कल आपका लास्ट लेक्चर है फॉर द ऑफिशियल पोर्शन टू गेट ओवर. ओके, टुमारो आई विल बी फिनिशिंग ऑफ विद दिस जर्नल प्रॉपर पार्ट. जो बचे हुए ट्रांजैक्शंस है थोड़े बहुत मुझे एक्स्ट्रा भी लिखवाने हैं, वो मैं लिखवा दूंगा कल. तो कल अपना ये खत्म होगा एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिमेनिंग चैप्टर्स, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. द डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनल अकाउंट. Sorry. So then from next week it will be only Tuesday, Thursday, Saturday, no? Next week sir, no lectures. Next week I need only 3 lectures of revision in the evening. Okay. Next week there will be only 3 lectures of revision in the evenings. Next week से morning lectures खत्म. अगर morning हुआ possible तो morning revision ले लूंगा जैसे हुआ वैसे. Yes, sir, what is this? दो या 3 लेक्चर बाय वेडनेसडे विल बी कंप्लीटिंग विद रिवीजन. बस अभी कितना? क्या बस अभी कितना? लास्ट चैप्टर तो बाकी अभी है. 5 से 6 रख दो ना.
we are doing शाम को दूंगा रिवीजन मॉर्निंग में नहीं, last मॉर्निंग अब रहने दो 1 बस month just बस for Morning just a 7:30 single chapter. मत रखो मॉर्निंग कल please. लास्ट लेक्चर है, मॉर्निंग फिर बंद, फिर खाली रिवीजन शाम को 2-3 लेक्चर और फिर कोई आएगा ही नहीं Tomorrow we लेक्चर have में. 2 lectures, right? सुबह. 7:30 to 9 or else 9:30 to 11, no? नहीं, कल भी एक लास्ट कंबाइंड है, I need 2 hours, so 9 to 11 लास्ट 2 hours big lecture Sir, combined. this is wrong. Why, what happened? What is this? We 2 hours lecture, sir. We get bored. लास्ट है यार, फिर आधे घंटे के लिए मैं वापस मंडे को बुलाऊंगा तो थोड़ी चलेगा यार. आने का है मंडे तो आ जाओ, फिर 2 लेक्चर कर लेता हूँ मैं, आई डोंट माइंड. This will be very very long. ले लो So tomorrow you will take 2 lectures. टुमारो सर कल 7:30 मत उठाना प्लीज. कल 9 to 11 बोल रहा हूँ मैं. 9 to 11 से रख दो. हाँ, चलेगा 9 to सर. 11 कल एक बड़ा लेक्चर है जिसमें ये खत्म हो जाएगा जर्नल प्रॉपर. फिर 11:30 तक मत लेना प्लीज. नहीं 11 खत्म, 11 पक्का खत्म. 9 to 11 Not more than a minute. अरे हाँ भाई, 9 to 11 जर्नल प्रॉपर, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सब खत्म. ओके, एंड Tomorrow रिवीजन evening आज you will शाम को take आना है class. 5 o'clock. सॉरी, Tomorrow evening you will take class. यस अरे इवनिंग चालू है. why? अरे Bus you are taking ना सुबह को बस इवनिंग ना. आज भी है, कल भी है, मंडे भी है, ट्यूसडे भी होगा. इवनिंग आज, कल, मंडे, ट्यूसडे. मत लो ना, सुबह ले लो ना 1 घंटा. Evening is optional.